has a convex lens of focal length 50 centimeter has power equal to 100 upon 50 centimeter equals 2 diopter. 100 upon 50 centimeter equals 2 diopter. ठीक है. Similarly, a concave lens. Sir, please repeat. Similarly, a concave lens of focal length 10 centimeter. Similarly, a concave lens of focal length 10 centimeter has power equal to 100 upon minus 10 centimeter. 100 upon minus 10 centimeter equals minus 10 diopter. ठीक है. From these values, it is clear that the power of concave lens is negative, whereas the power of convex lens is positive. Clear. So, next studying that we are going to deal with is power of combination of lenses. सर हाँ बेटा. सर अभी आपने जो बोला वो नोट में लिखवाया क्या? हाँ, वो नोट में एक एग्जाम्पल था बस, और कुछ नहीं था. ओके सर. Okay. Now, power of combination of lenses. Power of combination of lenses. ठीक है. लिख लीजिए. When number of thin lenses are placed in contact, when a number of thin lenses are placed in contact with one another, the power of the combination is equal to, when a number of thin lenses are placed in contact with one another, the power of the combination, the power of the combination is equal to algebraic sum, is equal to algebraic sum of powers of individual lenses, is equal to algebraic sum of power of individual lenses. फिर if P1, P2 and P3 are the powers of individual lenses, then the total power of combination, total power of combination of lenses is P total equals P1 plus P2 plus P3. इसी के नीचे एक लाइन लिखिए. The individual powers have to be taken, individual powers the individual powers has to be taken with proper sign.
Is the board visible to you, children? Whatever is written Yes, on the sir. board, is it clear? Yes, sir. All right, Yes, sir. fine. जयमंडल के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं फोटोग्राफर बुलाऊंगा अपने यहाँ पे, वो फोटो खींचता रहेगा। वो बोल रहा है, सर कैमरे में बोर्ड में क्लियर नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, सर बिल्कुल समझ में ही आता सर जो आप लिखते हो सर। बाकी बच्चों को तो सब दिख रहा है। इसका मतलब आपने जो मोबाइल वगैरह से ज्वाइन किया है, उस मोबाइल को रोटेट करो, और रोटेट करने के बाद पूरा बोर्ड आपको दिखाई देगा। जय, ये यस गूगल मीट ने यस अपने हाँ, गूगल मीट ने अपने फीचर्स चेंज कर दिए। जब आप उसको हॉरिजेंटली मोबाइल को रोटेट करके देखोगे तभी आपको पूरा बोर्ड दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। सो इन दिस वे चिल्ड्रन, दिस चैप्टर गेट्स ओवर। बस इतना ही है इस चैप्टर में, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस। नाउ व्हाट विल डू नेक्स्ट, we'll solve some numerical problems based on lens formula, linear magnification, and power. All right. So, write a question. Draw a level diagram for the formation of image. Draw a level diagram for the formation of image by a convex lens of focal length by a convex lens of focal length 15 centimeter. 15 centimeter when the object is placed at a distance of when the object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens. Determine the size of the image formed if the size of the object is 4 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूं। ड्रॉ a level diagram for the formation of image by a convex lens of focal length 15 centimeter when the object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens. Determine the size of the image formed if the size of the object is 4 centimeter. Come on. आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और डायग्राम ड्रॉ करना है। सर एक डाउट था हाँ, बोलो। सर, टोटल पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था? P total equals P1 plus P2 plus P3 plus dash 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 dash. ओके सर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन, हाउ मच, 15.0 सेंटीमीटर, एफ इज गिवन, ठीक है। U is given, position of object is given -25 सेंटीमीटर, ठीक। H1 is given, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H1 is given, it is +4.0 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड सर क्यों? पॉजिटिव क्यों? इसलिए कि लेंस जो ये है तो रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे मिलती है, जाके फोकस पे। फोकल लेंथ क्या होगी, ऑप्टिकल से यहाँ के बीच में, राइट साइड में। ओके सर। सर और कॉनकेव में? कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है, इन्वर्ट करके बैकवर्ड करते, प्रोजेक्ट साइड में लेफ्ट साइड में बनती है हमेशा,
इसलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है. Yes. ओके, यू नीड टू फाइंड आउट V, यू नीड टू फाइंड आउट H2 और साथ में रे डायग्राम बनाना है. करो, सॉल्व करो. Yes. Sir, height of image is 1.5 centimeter and it is virtual and erect. नहीं, real and inverted. और कितनी आई? 1.5 centimeter. चलो अभी देखते हैं. सर हाइट 6 सेंटीमीटर आई. हाइट 6 सेंटीमीटर आई टिया की. ठीक है, ओके. सर यस, सर यू की वैल्यू -25 है ना? हाँ, U इज ऑलवेज तो नेगेटिव. सर Yes, sir. Height of image 6 centimeter है. ठीक. अच्छा, किसकी इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर आई और किसकी -6 सेंटीमीटर आई? Sir -6. सर मेरी -6 सेंटीमीटर आई. -6. ओके, नाउ यू कैन लुक एट द बोर्ड. देखिए, सबसे पहले हमने लेंस फार्मूला लगाया. अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला वी हैव 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u. ठीक है, 1/v को यही रहने दिया, u को इस साइड लिया, पॉजिटिव हो गया. सो 1/v इक्वल्स 1/f, ये -1/u राइट लेफ्ट साइड में लेके आया, क्या हो गया? +1/u. नाउ 1/v इक्वल्स f की वैल्यू कितनी थी? +15. सो वी पुट 1/15. ठीक, प्लस 1/u कितना है? u कितना है? -25. सो वी नीड टू पुट 1/-25. और इसलिए क्या हो जाएगा? -1/25 हो जाएगा. एलसीएम निकाल लिया. 25 इंटू 15 कितना हो गया? ये एलसीएम इज 75. 15 5 जा 5 1 जा 5, 15 3 जा 3 1 जा 3. सो 1/v इक्वल्स 5 - 3/75, दैट इज इक्वल टू 2/75. ठीक, नाउ 1/v इक्वल्स 2/75. सो v इक्वल्स 75/2. दिस गिव्स द वैल्यू 37.5 सेंटीमीटर. कैसी आई है वैल्यू? पॉजिटिव. पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन राइट साइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव होती इसका मतलब इट वुड हैव बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस. फिर मैग्निफिकेशन लगा दिया. लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स h2/h1 इक्वल्स v/u.
H2 की वैल्यू हमको निकालना है। सो H2 इक्वल्स H1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल बी पॉजिटिव 4.0 इक्वल्स V की वैल्यू पॉजिटिव में है 37.5, U की वैल्यू नेगेटिव में है, सो -25 नीचे आ गया। H2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई -25, दिस गिव्स द वैल्यू -6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड वी कैलकुलेटेड द पोजीशन ऑफ image and the height of the image. Now on the basis of this information we have to draw the diagram. यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, v कितना आ गया 37.5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव आया। ठीक है, और ये सॉल्व कर लिया -6.0 सेंटीमीटर। Now on this basis we have to draw the ray diagram for this numerical. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, we'll draw a convex lens. Like this. ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, फोकल लेंथ आपको दिया था कितना 15, ये आपका हो गया फोकल लेंथ, मान लीजिए यहाँ पे है f, ये हो गया आपका f1, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितनी हो गई f1 तक के बीच की डिस्टेंस, इसको आप मार्क कर दीजिए यहाँ पे डिस्टेंस को 15.0 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, फिर सर ये राइट साइड तो F2 लेंगे ना किसमें, कॉन्वेक्स में? कॉन्वेक्स sir. राइट साइड में F2, हाँ कहीं भी ले, F2 है ये, F2 F1 की मतलब नहीं, आप इसको F मार्क कर सकते हो, दैट्स अप, क्योंकि दोनों साइड लेंथ सेम ही रहेगी, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको आप चाहे F2 मानो चाहे F1 मानो, फोकल लेंथ विल बी सेम। अब ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। नाउ आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको मार्क करना पड़ेगा, कितना है -25, इसका मतलब जितनी डिस्टेंस आपने इधर लिया 15 सेंटीमीटर C और F के बीच में, लुक एट द बोर्ड, C एंड F के बीच में उतनी डिस्टेंस आपको यहाँ लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी F1 15 सेंटीमीटर, फिर 15 ये प्लस 10 सेंटीमीटर और आपको लेना है स्केल से मेजर करके, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई -25 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे आप बना देंगे ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट इज AB। ऑलराइट, और इसकी हाइट दे दीजिए कितनी है ऑब्जेक्ट की, +4.0 सेंटीमीटर। अब रूल्स लगाइए, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through second principal focus of the lens। ठीक है, सेकेंड क्या लगा सकते हैं आप, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस passes undeviated। ठीक है, ये अनडेविएटेड पास हो गई, जहां पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे आप क्या बना देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, एंड दिस विल बी द इमेज पॉइंट। ये हो गया आपका A डैश, ये हो गया B डैश। ऑलराइट, अब इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पे आपने निकाला 37.5 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है +37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनी बच्चों,
बियॉन्ड 2f2। Yes, sir. देखो Yes, sir. ये हो गया आपका f2 15 सेंटीमीटर, इसका डबल 2f2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और इमेज कितने भी बन रही 37.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं आप इसको बना लीजिए 2f2, मार्क कर दीजिए पोजीशन 2f2। सो योर इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f2। देखो जब न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम बनाने के लिए आता है तो यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द रफ डायग्राम। क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ द डायग्राम, इसका मतलब स्केल से मेजर करके बनाइए आप डिस्टेंसेस, और यहाँ पे ये डिस्टेंसेस मार्क कीजिए कि इमेज की डिस्टेंस 37.5 प्लस में, फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर प्लस में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -25.0 सेंटीमीटर इतना, और इधर सर तो ये स्केल से 37.5 ड्रॉ करेंगे? नहीं, वो 37.5 एग्जैक्टली आपको पूरा मेजर करने की जरूरत नहीं है, या तो आप मेजर करो या तो आप इसको लिख दो स्केल बना के। जैसे अगर आपने लिख दिया तो वो एक्सेप्टेड है कि हाँ इतना है, नहीं लिखा आपने तो फिर अगर लिखना नहीं है इस तरीके से तो फिर पूरा मेजर करके बनाना पड़ेगा। मेजर करके ना बनाना सर पड़े, आपने एक फोकल सेकेंड लेंथ वगैरह तो मेजर किया था ना? एक सेकेंड, तो मेजर करके अगर आपको नहीं बनाना है तो आप सीधे लिखिए कि ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये आपको इतना 15 सेंटीमीटर थोड़ी ना है ये। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज नॉट 50, ये तो अभी आपकी 5 या 6 सेंटीमीटर ही है मैक्सिमम, लेकिन हमने उसको एज्यूम करके लिख दिया कि यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर है। या तो आप लिख दीजिए या तो फिर आप मेजर करके बनाइए। मेजर करने में तो कई बार पेज के बाहर जाएगा, इसलिए मेजर नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है, पोजीशन को मार्क करके डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, और ये हाइट हो गई प्लस 4.0 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी -6.0 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या शो करता है कि दिस इज इन्वर्टेड इमेज। और साथ में माइनस है, इसका मतलब इन्वर्टेड तो है ही, और v की वैल्यू कैसी है इसमें, u की वैल्यू निगेटिव है, -6 सेंटीमीटर मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है इसका मतलब कैसी होगी, रियल इमेज होगी। क्लियर? यस सर। सर एक अलग से डाउट था कि कॉन्वेक्स लेंस जब बनाते हैं तो पहले दो हॉलो ग्लास पेयर को लेते हैं, उनको जोड़ते हैं, फिर जो इतना बीच का पार्ट होता है उसको काट देते हैं। तो सर अलग अलग रेडियस वाले नहीं हो सकते वो दोनों हॉलो ग्लास पेयर? तो वो सेंटर ऑफ ये सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर कैसे आप लाओगे? ऑप्टिकल सेंटर मालूम क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर ये होता है उस लाइन का सेंटर जहाँ पे मैक्सिमम बल्जिंग आउट रहती है, मैक्सिमम थिकनेस रहती है। आपने क्या ले लिया, एक बड़े साइज का ले लिया, दूसरा आपने छोटे साइज का ले लिया, इस टाइप से, तो इसमें ये तो पूरा कर्वेचर इसका आए नहीं, कट गया वो पोर्शन। दोनों सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेना पड़ता है बेटा, नहीं तो बनेगा नहीं ढंग से। ओके Yes. सर। और इसीलिए F2 और F1 जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए वो दोनों इक्वल होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। Okay. All right. Now next question. Analyze the following observation table. Analyze the following observation table. Analyze the following observation table showing variation of image distances V with object distances U in case of a convex lens. Sir, please repeat. Analyze the following observation table showing variation of image distances V with object distances U in case of a convex lens, and answer the questions that follow. And answer the questions that follow.
ठीक है, टेबल देख लीजिए क्या है, सीरियल नंबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u in centimeter and image distance v in centimeter. ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, अब फर्स्ट केस -90 इमेज डिस्टेंस +18, सेकेंड केस -60 +20, थर्ड केस -30 +30, फोर्थ केस -20 +60, फिफ्थ केस -18 +90, and sixth case -10 +100. ठीक है, नाउ पार्ट 1 क्वेश्चन का, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? What is the focal length of convex lens? Give reason. चलो इसको बिना कैलकुलेट किए सॉल्व करके बताओ। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस? टेल द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस विदाउट कैलकुलेशन। Sir, 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। टिया का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स सी हाउ। अच्छा टिया बताओ कैसे? सर मैं बताऊं? नहीं टिया बताएगी, उसी ने आंसर दिया था। टिया हाउ 15 सेंटीमीटर? टिया सर मैं बताऊं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ टिया ने आंसर बताया फिर क्यों नहीं बता रही हो? हाँ आप Yes, बोलो टिया। sir. हाँ बोलो कैसे हुआ 15? Sir, sir, from serial number 3, वेरी गुड, बस third, खत्म। बस मैं आई अंडरस्टूड। देखो फ्रॉम सीरियल नंबर, इस केस में आपको क्या पकड़ना है कि कौन से ऑब्जर्वेशन में दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ -30 है, यहाँ पे +30 है। ठीक, ये -30 +30 का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ u इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ v। ठीक है, u और v क्या हो गए? दोनों बराबर। और ये कब होता है? जब u और v दोनों सेंटर बराबर ऑफ होते हैं। कर्वेचर, हैं? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, हाँ तो u और v दोनों बराबर हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2f। ठीक है, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2f पे हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? 2f पे रखा हो। इसका मतलब 2f पे है, तो अब f इक्वल्स कितना? दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। So 2f is equal to 30 centimeter. That means f is equal to 30/2. So it is 15.0 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यस। तो आप इसमें ऐसे केस में अगर बिना सॉल्व किए करना तो आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा जिसमें u की डिस्टेंस, u की वैल्यू और v की वैल्यू सेम हो। जो भी वैल्यू हो इसका हाफ कर दो आप, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट। सर इसका मैग्निफिकेशन 1 आएगा क्या? मैग्निफिकेशन हाँ 1 ही आएगा इस केस में, क्योंकि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बोथ विल बी सेम। बट हम तो v/-u हो जाएगा ना, सॉरी -v। -1 आएगा ना मैग्निफिकेशन। हाँ तो -1 क्या शो करेगा? -1 शो करेगा कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बट द इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड।
वो माइनस साइन ये Okay, शो sir. करता है कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और वैल्यू 1 आ रही, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज सेम। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द सीरियल नंबर of that observation which is not correct. Write the serial number of the observation which is not correct. बोलो, कौन सा सीरियल नंबर है जिसमें ऑब्जर्वेशन सही नहीं है? 6. -10 + 100। सीरियल नंबर 6। देखो, उसके लिए हमको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सही है कि कौन सा नहीं है सीरियल नंबर, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, लेंथ फॉर्मूला लगाना। इस क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए कि विच सीरियल नंबर इज नॉट करेक्ट, किसमें ऑब्जर्वेशन सही नहीं दिया है, तो आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूला आप लगा दीजिए। आप फोकल लेंथ आप पहले निकाल चुके हैं 15, तो 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सो 1/f इक्वल्स 1/v। मान लीजिए हम 6 वाले से स्टार्ट करते हैं, नीचे से या ऊपर से कहीं से भी। 6 वाले से स्टार्ट किया तो v की पोजीशन कितनी हो गई? 100। ठीक, माइनस 1/u कितना है? -10। सो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10। 1/f इक्वल्स कितना हो गया? ये 100। ठीक है, सो 1 + 10 दैट इज 11/100। सो f इक्वल्स कितना हो गया? 100/11 विच इज नॉट इक्वल टू 15.0 सेंटीमीटर, जो आपने पहले निकाला था। ठीक है, तो पहले वाला जो आपने अभी फोकल लेंथ जो निकाला था, इस वाले थर्ड ऑब्जर्व सीरियल नंबर को लेके कितना था? 15, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं आ रहा है। Since focal length is not equal to 15, that means this observation in serial number 6 is wrong. सर, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबका निकालना पड़ेगा कि सबका 15 है? सबका निकालना पड़ सकता है आपको, लेकिन आप सबसे पहला इसका ट्रिक क्या है कि जिसमें डिफरेंस मैक्सिमम हो पहले उसको पकड़ो। यहाँ पे देखिए 100 और 10 का डिफरेंस है ना, सबसे ज़्यादा है 10 टाइम्स, बाकी में कम है। तो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाली जो वैल्यू है पहले आप उसको पकड़ो। अगर उसमें सेम आ जाता है तो फिर दूसरे पे जाओ। ठीक है स्नेहा? तो हम किसी एक का निकाल लेंगे और फिर हमें जो बाकी हर केस में 15 आएगा। सिर्फ यही केस है जिसमें 15 नहीं आया, आप करके देख लो। ठीक है, हर एक केस में 15 ही आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। उसको पकड़ने का तरीका क्या? आप डिफरेंस देखो, 100 और 10 है, -10। यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, 90 का डिफरेंस है, बाकी किसी में 90 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 60, 20, 40 का डिफरेंस है, 19, 18 5 टाइम्स का ही डिफरेंस है, बस 30, 30 इक्वल ही है, फिर 40 का है, फिर ये 5 टाइम्स का ही है, यहाँ पे 10 टाइम्स का डिफरेंस है। तो एक बार जल्दी से पकड़ में आ जाए, उसके लिए मैक्सिमम डिफरेंस वाले को आप वैल्यू सीरियल नंबर को देखो, फिर उससे फोकल लेंथ निकालो और देखो कि जो फोकल लेंथ पहले हमने कैलकुलेट किया था उसके बराबर है कि नहीं। अगर सेम वैल्यूज नहीं आ रही है, इसका मतलब दिस सीरियल नंबर इज नॉट करेक्ट। ऑलराइट, और मान लो बाय द वे धोखे से ये आ गई इक्वल, तब फिर आप दूसरे पे जाओ, फिर उसकी भी आ गई, तब तीसरे डिफरेंस वाले पे जाओ। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ द रे डायग्राम। टेक द अप्रोप्रिएट स्केल, ये स्केल नहीं, स्केल टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सीरियल नंबर 4। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन सीरियल नंबर 4 के हिसाब से आपको क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 4 एंड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अब फिर उसके हिसाब से आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है,
तो फॉर सीरियल नंबर 4 लिख लीजिए आप, फॉर सीरियल नंबर 4 क्या निकाल लीजिए, पहले 1/f निकाल लीजिए, इसकी u एंड v निकाल लीजिए, बस हो गई। u एंड v इज गिवन, u एंड v के हिसाब से हमको इस ड्रॉ करना है इमेज। सीरियल नंबर 4 पे u की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, और v कितना है, +60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए लेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है कि फोकल लेंथ 15 था इस क्वेश्चन में। स्नेहा माइक बंद कर लो बेटा, इको हो रहा है। ठीक, नाउ रे डायग्राम बनाना है। सो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ f2 मेजर हमको पहले से पता है कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। u दिया हुआ है कितना, माइनस, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या लीजिए आप, जितना ये डिस्टेंस था उतना सेम डिस्टेंस लेके ये आपका f1 हो गया, और f1 भी 15 ही होगा, तो इसके बाहर ले लीजिए, बियॉन्ड f1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड f1। ठीक, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है, -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद v है +60 सेंटीमीटर, प्लस साइन दिया है, इसका मतलब इस साइड बनेगा, तो 15 4 टाइम्स ले लीजिए, 15 15 15 15, मतलब ये आ गया यहाँ पे करीब करीब, ये हो गया पोजीशन। ये 15 है f फोकल लेंथ, डबल क्या हो गया, 2f2, बियॉन्ड 2f2 जा रहा है इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगी। अब यहाँ पे आप इमेज ले लीजिए यहाँ से स्केल से, मतलब उसी, कोई ज़रूरी कि स्केल आपकी वही हो, आपको डिस्टेंस मेज़र करके लिख दीजिए, बस हो गया। ये कितनी हो गई, +60 सेंटीमीटर। नाउ वी ड्रॉ द डायग्राम। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सर एप्रोप्रिएट स्केल कब लेना है? अप्रोप्रिएट स्केल लेने का मतलब आपको स्केल, ये जो फिजिकल स्केल है ये नहीं है, स्केल जो हम मैप में स्केल बनाते हैं ना, स्केल इंडेक्स बनाते हैं कि नहीं स्केल के लिए, उस स्केल ग्राफ में भी तो लेते हैं। ग्राफ में भी लेते हैं, वैसे ही है, सेम रेशियो में। तो उसको आप बनाने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे ले लिया, 15 है तो इसका 15 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जितना आपने 15 लिया था उसका 4 टाइम्स ले लीजिए, मतलब वो स्केल चल रही है आपकी, उसी स्केल में आपको बनाते चलना है बस। तो हमने स्केल नहीं ली। नहीं, स्केल थोड़ी लेना है। ये मान लीजिए इस टाइप से ये आपकी गई। दूसरा इस टाइप से ये रह गई, और यहाँ पे ये जाके आपकी इमेज बन गई है। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई इमेज की, 60 सेंटीमीटर, एंड इट विल बी फाउंड बियॉन्ड 2f2। नाउ फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स v अपॉन u इक्वल्स +60 अपॉन -20 इक्वल्स -3 सेंटीमीटर। It means this image is 3 times larger than the object. हाँ, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। वेरी गुड, दिव्यांशी ने मुझे करेक्ट किया, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। सो देखिए यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन आया -3, इसका माइनस साइन का मतलब इट इज इन्वर्टेड, और 3 का मतलब इट इज 3 टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट, सर यस सर आपके मतलब आपने जो क्वेश्चन बोला उसमें तो अप्रोक्सीमेटली लिखा था,
तो फिर ये तो करेक्ट आ रही है वैल्यू। अप्रोप्रिएट बोला है, अप्रोक्सीमेट नहीं बोला है मैंने। नहीं, लीनियर मैग्निफिकेशन में आपने बोला ना। अच्छा, सर शायद एंड आपने फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हाँ तो ठीक है ना, एग्जैक्ट आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत ओके थोड़ी। सर। ठीक है, आपने इसको मैग्निफिकेशन निकाल दिया 3 टाइम्स है। अब आपका देखिए, इसको इसलिए हम एग्जैक्टली सही नहीं मान रहे, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि आपका स्केल में जो रे डायग्राम आप बना रहे हो उसके हिसाब से ये सही है। या तो फिर आप मेजर करो इसकी हाइट कितनी है और इसको मेजर करो, तो जो हाइट होगी वो हाइट एग्जैक्टली ए बी जो हाइट है उसकी 3 टाइम्स नहीं होगी ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगी, इसलिए उसको बोला अप्रोक्सीमेट। लेकिन न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो -3 मैग्निफिकेशन आएगा। किया? यस सर। इमेज की जो हाइट है वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं होगी ए बी की, आप स्केल से मेजर करके देखो नहीं होगी, इसलिए अप्रोक्सीमेट है। लेकिन मैग्निफिकेशन निकालोगे तो -3 आएगा। ठीक? यस सर। Here minus sign indicates that the image is inverted. ठीक है? All right. Magnification Yes, is sir. -3. Here minus sign indicates that the image is real and inverted. माइनस का मतलब है इन्वर्टेड है, चूंकि इन्वर्टेड है इसलिए वो रियल है। नाउ होमवर्क फॉर टुमारो। गूगल फॉर्म है आपका, होगा, मुझे क्या करना है गूगल फॉर्म से, मेरा तो हो चुका है। ओके चिल्ड्रन, सो यू मे स्विच ऑन योर कैमरा। Thank you, sir. Siren. नहीं साईराम नहीं, स्विच ऑन कैमरा। अभी क्लास जाने के लिए मैंने नहीं बोला, सर उसने साइन आउट सुन लिया। साइन आउट नहीं बोला है।